اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دادا پوتا شو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 1.5 دہائی سے ہمارا یہ انیشیٹو جس میں ہم سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو بتائیں سب سے بڑی خبر جو کل رہ گئی تھی، کیونکہ میں دادا پوتا شو کر کے فارغ ہوا ہوں تو سامنے پڑا ہوا تھا، ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی جس کے اندر آیا کہ روس نے بھی $2 ارب کا جو اس نے ہمیں لون دیا ہوا ہے وہ رول اوور کر دی، ٹھیک ہے۔ اور ایک سائٹ پہ یہ ہو رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ ایک چول انسان جو ہے وہ IMF کو خط لکھ رہا ہے کہ انہوں نے قرض نہ دینا کیونکہ انہوں نے چوری کر لینا۔ انہوں نے کہا تسی کون ہو؟ جی میں چوری تھی سزا بھگت رہا ہوں اندر، ٹھیک ہے۔ کمال ہے، ویسے کمال ہے۔ لیکن بادشاہ چلو آج کی خبریں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ روپیہ آج سٹیبل ہے اور نئی حکومت نئی پارلیمنٹ کے حلف اٹھانے کو 850 پوائنٹ کی سلامی دی ہے سٹاک مارکیٹ نے، اور اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، انڈین باسمتی رائٹ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ گر گئی ہے، کیونکہ پاکستان سے اصلی والی باسمتی جو ہے، ہائیبریڈ باسمتی نہیں، اصلی والی باسمتی جس کو کہتے ہیں کچی باسمتی ہے، سپر کرنل جو ہے اس کی ایکسپورٹ بڑھی ہیں۔ یہ ایک خبر ہے جو آج بزنس ریکارڈر کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اور جناب لیٹر لکھا تھا PTI نے IMF کو، اور اس کے اوپر سوال کروایا تھا امریکی دفتر خارجہ کی بریفنگ کے اندر، اور اس کے ترجمان نے جو پیسے لے کے سوال پوچھنے والا تھا PTI کی طرف سے، اس کا مکو ٹھپ دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ پاکستان اور IMF کو آپس میں تعاون جاری رکھنا چاہیے اور پاکستان کو اپنی مالی معاملات کو سیدھا کرنا چاہیے تاکہ وہ جو اس وقت قرضوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے اس سے باہر نکل سکے۔ اس کے بعد جناب JS بینک نے 853% اس کا پروفٹ بڑھ گیا جی، ماشاءاللہ۔ جہانگیر صدیقی صاحب کمال ہو گیا، پاگ لگے رہے، برکتاں پہ آ گئی ہیں۔ علی بھائی نے بہت اچھا پرفارم کر کے دکھا دیا ہے، ویسے شاباش بنتی ہے آپ کی، دبئی سے فون کر کے شاباش دیں اس کو، بچے کو بہت اچھا پرفارم کیا۔ 853% اس کے پروفٹ کے اندر سر جائیے سر 2023 کے اندر، سر کمال ہو گیا ویسے۔ نہیں میں کسی گڑ کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن سر منہ میٹھا کروائیں سر، میرا مطلب ہے کہ 100 روپے اگر کمایا تھا تو اب 853 روپے کمائیں سر، 8.5 گنا اضافہ سر، بھاگ لگ گئے سر۔ تو اس کے بعد جناب مکیش امبانی صاحب جی ایشیا کے امیر ترین آدمی بن گئے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ KPK بلوچستان کی اسمبلیاں وغیرہ جو ہیں انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ اندازہ کریں بزنس ریکارڈر کے اندر بھی اکانومی کی خبریں نہیں ہیں، تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم پرنٹ ایڈیشن کو بھی چیک کر لیں، تو ہم آن لائن اس کی ویب سائٹ جس میں تازہ ترین خبریں آ رہی ہوتی ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں نا۔ کابینہ کی کمیٹی برائے نجکاری نے پاور ڈویژن سے کہا ہے، یعنی حکومت کے ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ وہ نندی پور پاور پلانٹ اور گدو پاور پلانٹ کی جو نجکاری ہے اس کے اندر حائل رکاوٹوں کی تفصیلات سے آگاہ کرے۔ 15 فروری کو نجکاری کی وزارت جو ہے اس نے اپنی جو سمری ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل کو بھیج دی ہے، اور جو کہ 8 اگست کی میٹنگ کی سمری نکلی ہے یہ، یعنی آپ اندازہ کریں 8 اگست کی سمری جو ہے وہ 15 فروری کو نکلی ہے، وہ مشتاق گمن کے ہتھے چڑھ گئی ہے، اس نے خبر دے دی۔ لیں جناب ایک کوئی خبر سی وڈی ساری چھپی ہوئی اکانومی کی۔ پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ جو ہے وہ گوادر پاور پلانٹ کی جو ڈیٹ ہے فائنینشیل کلوز کی وہ بڑھا دی ہے اس نے۔ آج یہ بھی ایک خبر چھپی ہوئی ہے، 100 ارب روپے جو ہیں وہ FVR کے نوٹس جو ہیں اس میں SNGPL کو دینے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جناب کہا ہے کہ اس نے سوئی SNGPL کے اوپر نوٹس سرو کیا ہے تاکہ وہ 100 ارب روپے کا اس سے ٹیکس وصول کر سکے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے حوالے سے یہ بھی ایک خبر چھپی ہوئی ہے۔ یہ خبریں تھیں جی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں دادا پوتا شو کے پلیٹ فارم سے۔ اب آ جائیے آپ کا فیڈ بیک۔ دادا جی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ رانا طارق عرض کر رہے ہیں اسپین تو۔ دادا جی تھوڑے اندازے پھر غلط ہو رہے ہیں۔
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਾਹਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਸੈਯਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਯਦ ਹੈ? ਲੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ 9 ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੈਯਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਯਦ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਲਾਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਕਿਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਕਰੂਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਜਾਣ, ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਟ੍ਰਿਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰੇ ਮੁਆਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨਾਮਾ 2 ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਲੌਗ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਾ 5 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ 6ਵਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲਿਓ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਸਲਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ਼ੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ठीक है ऐ जनाब, हम गुज़र रहे हैं, ये मैसेजेस जो हैं ये 22 फरवरी के हैं। तो आपको पता है कि उस वक्त सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल थी, ज़्यादातर सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल ही आए हुए हैं। अगे चलो। अस्सलाम वालेकुम जी दादा साहब, क्या हाल है? ठीक हो? खैर है दादा साहब, ये बैरियर टोन के विच ABS ये अब्दुल सबीर साहब ने एक 3 टावर बना रहे हैं परलवन कोड यार्ड, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हैं जी, वो भाई मैं नहीं खरीदना, हमारा नंबर चढ़ जाता है जी लोगों के हाथ, वो फिर प्रॉपर्टी की जो मार्केटिंग वाले हैं ना वो अपना काम सानू भेजना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दादा जी, क्या हाल है? अच्छा दादा जी, मैं ना आपसे 4-5 मरतबा मिल भी चुका हूँ। एक मरतबा आपके साथ वो मिनी मार्केट में मुलाकात हुई थी, मैं अपने ऑफिस से लंच ब्रेक करने के लिए, डिनर ब्रेक करने के लिए आया था, तो वो नीचे खोखा है पानों का, तो आपका ऑफिस है मेरे हाथ से ऊपर, तो आप उधर से भी मुलाकात हुई थी आपसे। तो दादा जी काफ़ी अरसे से आपको जो ना सुन रहा हूँ, तो यूथिया बन गया हुआ था मगर वापसी नॉर्मल इंसान हो गया आपके जो ना व्लॉग से। तो अभी जस्ट मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ था कि मुझे ना काफ़ी जो ना लोगों से ना सुनने को मिल रहा है कि ये जो LED जो बाहर लगती है ना जो पब्लिसिटी के लिए, इनमें इन्वेस्ट करो। तो कुछ जानने वाले उन्होंने किया भी हुआ है, तो वो मेरे हाथ से 6 लाख रुपए पे 35,000 रुपया मंथली उनको ना पे किया जा रहा है। तो मैंने पूछना था कि अगर आपके कोई इल्म में इस चीज़ को
लेके कोई चीज़ हो तो मुझे बताइएगा। ये कोई जो ना फ्यूचर इनविजन के नाम से भी कोई कंपनी है बरकत मार्केट में, वो भी काम कर रही है ये, ठीक है। तो दूसरा जो ना कुछ और कंपनीज भी हैं वो भी कर रही हैं। तो आप काइंडली इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा कर दीजिएगा। आपको क्योंकि ज़्यादा आइडिया है इस चीज़ का, तो आप बता देंगे तो ये सिक्योर है नहीं है, हमें इस साइड पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा नाम फ़ारूक शहजाद सुबहानी है, तो जो ना काइंडली इसके ऊपर रोशनी डाल दीजिएगा। फ़ारूक सुबहानी साहब, बात ये है कि जितनी भी आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की कंपनियां हैं, ये मुख्तलिफ जर्नैलों के बच्चे या जर्नैल इन्होंने मुलाजम रखे हुए हैं, ठीक है, अपने पे रोल पे रखे हुए हैं। अब ये अगर ये लोगों से पैसे ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर, तो जब वो बंदे की इन्वेस्टमेंट फंसेगी सही ज़रूर, ठीक है, तो उसके बाद आगे से वो जर्नैल साहब या जर्नैल के साहबजादा साहब दिखा देंगे। अब लड़ने की कोशिश करेंगे, भारी आवाज़ वाले आपको फ़ोन आ जाएंगे, इसीलिए इनको 10-10, 20-20 लाख रुपए पे रखा जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल किसी बराह रास्त किसी कारोबार में सरमायाकारी करना पाकिस्तान के कानून के तहत जुर्म है। आप अगर इसमें लुट गए तो आपके पास फोरम कोई दस्तयाब नहीं है जिसके ऊपर आप दरखास्त लेके जाएंगे, वो कहेगा पहले तू तो इत्थे बहन इन्वेस्ट किवें कीता सही, ये तो गैर कानूनी हरकत, ठीक है जी। मेरे ख्याल 6 महीने या 2 साल सजा आ गई है अगर आपने किया होगा। उसके लिए तो है ही है जो ये कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है? क्योंकि उन्हें मुलाजम जर्नैल रखे हुए ने या जर्नैलों के पुत्र रखे हुए ने। ये जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है ये ज़्यादातर जर्नैलों के हाथों में या उनके बच्चों के हाथों में। तो मैनू तो भाई ये लगता डर, क्योंकि अपने को होर मार खाण जोगी कोई हिम्मत नहीं हैगी, तो अल्लाह का नाम है तू ही ना कर, कोई होर काम कर ले, बड़े काम नहीं यार, ठीक है। अभी मुझे कोई साहब बता रहे थे, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक साहब ने एक IT का इंस्टीट्यूट खोला है, गूगल क्लाउड नहीं होता आजकल, गूगल क्लाउड का बड़ा डाटा मैनेजमेंट ये वो सारा कुछ, वो सर्टिफिकेशन है उनकी, वो सर्टिफिकेशन उसके लिए बच्चों को दाखिल करते हैं। मैट्रिक क्वालिफिकेशन या इंटर होनी चाहिए बच्चे के लिए, अंग्रेज़ी छोटी मोटी आनी चाहिए, और अगर वो बच्चा क्वालिफाई कर जाए तो उसको वो जॉब दे देते हैं $500 पर महीने की। आजकल के दौर दे विच 1.5 लाख रुपए बनता है, एक शिफ्ट 8 घंटे की होंगी, ठीक है, और हफ्ते में 5 दिन काम करना, ठीक हो गए। अच्छा, ये जॉब उनको दे देते हैं, आगे उनको कितना मिलता है? $800, $300 अपनी जेब में पा दें। की ख्याल, मज़ा आया गल सुन? और जितने बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं उन सब की नौकरियां लगाई जाते हैं, खुद बैठ के सुकून से कहा रहे हैं पढ़ाने वाला, और उन्होंने इम्तिहान देना है गूगल को ऑनलाइन, पास हो जाएंगे, पुत्र नौकरी पई, नहीं पास होया थैंक यू वेरी मच, सलाम अलैकुम, तेरे को असीं कोई पैसे नहीं लेने, ठीक है ना। अगर तू क्वालिफाई कर गया नौकरी हाजिर है, नहीं क्वालिफाई किया दोबारा ट्राई करनी है, फिर आज ही महीने बाद तैयारी करके ट्रेनिंग तो तेन पूरी दे देती है, ट्यूशन तो तेन पूरी पढ़ा दी थी, दोबारा पढ़ना है बह जा, फिर पढ़ ले, पढ़ के फिर इम्तिहान दे ले, क्वालिफाई करना है ठीक है, नहीं करता थैंक यू वेरी मच पुत्र, फिर आई चाह शा पियांगे। ये इस तरह के और बहुत सारे ऐसे काम हैं, किसी इनोवेटिव सोच पे जाओ यार। लोग मतलब पिछले दिनों मैं बैंक गया तो वहाँ पे एक बच्चा था जो आया हुआ था अकाउंट खोलने, और मैनेजर कह रहा था कि बेटा आपका अकाउंट नहीं खोल सकता, क्योंकि बच्चे की उम्र 14 साल के 15 साल सी, अकाउंट 18 साल के बच्चे का इंडिपेंडेंट खोलता है। अगरचे हूँ मेरा ख्याल उन्होंने कोई ऑप्शन रख लिया है कि खोल देते हैं, लेकिन वो मैं कहा बच्चे तुम्हें क्या वक्त पड़ गया यार अकाउंट खोलने का? कहता है कि मैं जो हूँ वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ। 15 साल का 14 साल का बच्चा ऑनलाइन ट्रेडिंग करने दे, कहा दी मैं ऑनलाइन कारपेट बेचता हूँ। अच्छा, कारपेट कहाँ से लेते हो बच्चे? ये वहाँ से जाके मार्केट से ख़रीदता हूँ, ऑर्डर आता है, कारपेट ख़रीद के DHL के ज़रिए दुनिया भर के अंदर, ख़ासतौर पे अमेरिका को टारगेट किया हुआ था, मैं भेज देता हूँ। अच्छा, मैं कहा महीने का कितना कमा लेते हो? मैंने कहा मैं $2000 एट एन एवरेज कमा लेता हूँ। तो बेड़ा था जो $2000 का मतलब पाकिस्तान में 6 लाख रुपया है, तो खर्चा होता कोई भी नहीं, जीरो है। कहते मैं क्या तो अम्मी अब्बी ने भी कुछ देना है? कहता हाँ, $50,000 अम्मी को देता हूँ, $50,000 अब्बा को देता हूँ, जेब खर्च नहीं लेता उनसे, ठीक है। वो हम अकाउंट खोलन आया हुआ सी, बच्चे का जो अकाउंट नहीं खुलता सी। तो बहरहाल इस तरह के नए कारोबार में जाएं यार,
ये ट्रेडिशनल कारोबार, देखिए आप हसन निसार की तरह रेडी लगा सकते हैं। हसन निसार ने भी MA करने के बाद रेडी लगाई थी, ठीक है, रेडी लगा सकते हैं। उसी तरह की बीमार ज़हनियत हो जाएंगे आप। पॉजिटिविटी क्रिएट करें यार, इनोवेशन लेके आए ज़िंदगी के अंदर। लोग कहते हैं 60 साल की उम्र में बंदा लर्न नहीं कर सकता, मैं लर्न करन लगा होया तो तुहानू मौत पैंदी है। नई चीजें लर्न करें, उनके अंदर ज्यादा पैसे हैं अल्लाह के बंदो। नहीं तो दीवार ते चढ़ के हम साए च झाक लो, आइडिया वेख लो की करन डे ने उत्थे बच्चे और बच्चियां, ठीक है। तो आप सुबानी साहब, आपकी मेहरबानी है यार, हैं आप भी और ये साहब भी जो है कोई नए कारोबार के एक और कारोबार। उसी बैंक मैनेजर साहब मेरे दोस्त है ना, अपने फ़ैन है, तो वो बता रहे थे कि एक बच्चा है वो एक जगह पे काम करता था दुबई में, अच्छा जी, वहाँ से वो भाग के पाकिस्तान आ गया, वापस आ गया, फिर उसने आगे यहाँ पे काम शुरू किया, अच्छा जी। वो उसने एक पहले एक कोठी ली, पहले एक 10 मरले का मकान लिया, फिर कनाल की कोठी ली, अब कनाल के साथ वाली भी कोठी ले ली, अच्छा। वहाँ पे क्या है, वर्क स्टेशन बने हुए हैं, अच्छा। वर्क स्टेशन किस चीज़ के बने, वो ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन काम क्या करते हैं, चाइना से लोहे की चीज़ बनाते हैं, क्योंकि चाइना से डायरेक्ट एक्सपोर्ट अमेरिका को बैन है, वहाँ से उठा के मैक्सिको ले जाते हैं, मैक्सिको में एक वेयर हाउस में उतारते हैं, वहाँ पे मेड इन मैक्सिको लिखते हैं और मेड इन मैक्सिको बना के वो फिर अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अरबों रुपए का कारोबार कर रहा है वो बच्चा यहाँ पे बैठ के, और उम्र उसकी कितनी है, 22 साल है कि 23 साल है, और सिर्फ करोड़ के रुपए के करीब वो दुबई से पैसे हर महीने मंगवाता है अपने स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए। और क्या है, स्क्रीनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, और उस वेयर हाउस के अंदर कैमरे लगे हैं। चाइना की जिस फैक्ट्री से माल बनाते हैं वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। अमेरिका में इस वेयर हाउस में जाके वो माल उतारते हैं, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है सारी। मज़ा आया। 22-23 साल का बच्चा है और वो ये काम जनाब इस वक्त अरबों रुपए काम कर रहा है। मैं गया अपना 18 अपना काम सीखा कितों सही, कहता दुबई से सीखा था। अच्छा, दुबई में वो गया था काम करने, वहाँ पे की पंच ऑपरेटर एक ऐसे इदारे में भर्ती हो गया, वो किसी इंडियन का इदारा था, वहाँ पे उसने सारा काम सीखा ऐसे करके, उसके बाद भाग आया वहाँ से, यहाँ पे आके उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब जब कभी डिटेल में बैठ के उसकी कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा उसको क्या मुश्किलात हुई थी। इनोवेशन लेके आओ यार ज़िंदगी के अंदर, क्या ये दोबारा फलां जगह पे इन्वेस्ट कर दें, ये बात मेरी पल्ले से बांध लो सुभानी साहब, कोई किसी के लिए नहीं कमाता, ये बात अब पल्ले बांध लीजिए जी। कोई माँ के अलावा और बाप के अलावा कोई आपको कमा के आपके मुंह में नहीं डालता। ये काम होता ज़रूर है, बड़ा ही कोई शरीफ आदमी होगा, बड़ा ही कोई नस्ली आदमी होगा, बड़ा ही कोई हलाली होगा जिसे कहेंगे कि आप उसे पैसे दें और सही सलामत वापस ले लें। पैसे इस तरह के जो निजी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इनमें वापस भी नहीं आते। अजान हो गई, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।